Myself, Dr. Vivogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, and universities. I taught class 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE, ICC, CBSE, ICC both board, and I have taught MBA, BBA, BCom, MCom, and MA economics in different universities. Today, I am teaching a very simple topic in aggregate demand and aggregate supply, that is saving function. This topic is important for not only for board examination but those who are preparing for Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and those faculty member who are preparing for competitive examination like MPSC, UPSC, BPSC, Bihar Public Service Commission for assistant professor. These topics are very important. These topics are basic topic which will come in every examination, every state. The economics examination will be held. These questions will be asked. So you must know the basic things. After that, I will also introduce my videos in UGC net. But first of all, I will teach you the basic topics. After completing the basic topic 9, 10, 11, 12 basic topics, then we will go to the proceed UGC net, and then I provide the important questions regarding UGC net, and also maybe I will cover whole the topics of UGC net, that is macroeconomics, public finance, economic growth and development. Okay, now today I will teach you very simple topic, that is saving function, which I am telling you. Saving function basically for class 12 students and board examination, it is very important. So please write down saving function. What is saving function? You have already learned what is consumption function, which I have already which I have uploaded my video already. Consumption function I have already explained. Now I am telling you saving function. So what is saving function? Saving function means like consumption, saving also depend on like consumption, जैसे कि कंजम्पशन है, सेविंग आल्सो डिपेंड ऑन इनकम. सेविंग किस पे डिपेंड है? सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम. सेविंग हमारी डिपेंड्स करती है इनकम पर. सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम. ओके, जैसे कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन पे इनकम पे डिपेंड करता है, वैसे ही जो सेविंग फंक्शन है वो भी किस पे डिपेंड करता है? इनकम है. तो हम कहेंगे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. और कंजम्पशन को हम दिखाएंगे सी से और सेविंग को दिखाएंगे एस से. तो दिस मीन्स दैट सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी. भाई 100 रुपये आपके पास है और 100 रुपये में आपने 80 रुपये खर्च करे, 20 रुपये बचा दिए. एक बार दोबारा समझिए, 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये में आपने 80 रुपये खर्च करे और 20 रुपये आपने क्या कर दिया? सेव कर दिए. तो उसे क्या बोलेंगे? सेविंग बोलेंगे. तो सेविंग किसे कहते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन. तो हम इसको कैसे, इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन. इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Okay, it is excess of income over consumption expenditure. मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. और हम ये कहेंगे सेविंग, और हम ये भी कह सकते हैं सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इट. और हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इनकम एंड सेविंग. इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेट इनकम. इट इज़ द, वी कैन राइट, इट इज़ द functional relationship. It is the functional relationship between saving and income. Between saving and income. ये क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम होगा. तो हम इसको हम कहते हैं सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन अपॉन इनकम. भाई जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा हम पैसा सेव कर सकेंगे, जितनी कम इनकम होगी उतना कम पैसा सेव करेंगे. सीधा सा इसका बेसिक फंडा ही है. ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल टू आपने पढ़ लिया इनकम माइनस कंजम्पशन, आपने एस इज इक्वल टू वाई माइनस एस. इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब देखिए मैं आपको इसको आई विल एक्सप्लेन विद द टेबल. ओके, नाउ दिस थिंग सेविंग फंक्शन
saving function I will tell you, and I am explaining saving function, and saving function I will tell you with the help of table. Saving function, तो सेविंग फंक्शन में व्हेन वी रीड अबाउट टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इनकम, यहाँ स्टूडेंट इनकम लिखेंगे और इनकम के नीचे यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी इनकम स्टार्ट हुई है वो हुई है 0 से, 0 100 करोड़ में ले लीजिए आप, इससे कोई दिक्कत नहीं, रुपीज़ करोड़, 100 200 300 400 500 एंड 600। हमने इनकम ली कितनी, 0 100 200 300 400 500 एंड 600। और अगर मान लो कंजम्पशन है, मैंने आपको बताया था कंजम्पशन जो होगा 0 होगा, अगर इनकम 0 होगी तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। तो हमने कंजम्पशन ले लिया 100 150 200 250 300 350 एंड 400। नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट सेविंग। हाउ वी कैन फाइंड आउट सेविंग? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। So income minus 0 minus 100, that is minus 100, that is minus 50, that is 0, that is 50, 400 minus 300 100, 500 minus 350, that is 150, and 600 minus 400, that is 400। तो देखिएगा ये हमने टेबल बनाया है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेविंग 0 कब होगी? जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेविंग 0 तब होगी जब जितना भी पैसा आपने खर्च कर दिया, 50,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी सेविंग तो कुछ हुई नहीं, तो सेविंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे जरा इसको देखिए जरा। जब आप यहाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कंजम्पशन इज मोर देन व्हाट? सेविंग यहाँ पे नेगेटिव है। तो सेविंग नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? सेविंग नेगेटिव का मतलब है कि कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। भाई सेविंग नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि सेविंग नेगेटिव इसलिए होगी कि कंजम्पशन खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम है। खर्चा आपका 80,000 का, इनकम आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये, तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सेविंग नेगेटिव तब होगी व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। सेविंग 0 तब होगी जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा। अब आ जाइए इसमें क्या है? इसमें आपने बोलना है कि जब क्या होगा, जब इनकम इज मोर देन, यहाँ देखिए इनकम क्या है? इनकम क्या? मोर देन कंजम्पशन है। तो क्या होगा? सेविंग पॉजिटिव होगी। सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ ली। सेविंग 0 तब होगा जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा। सेविंग नेगेटिव तब होगी जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा। और सेविंग पॉजिटिव तब होगी जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगी, तभी सेविंग पॉजिटिव होगी आपकी। तो 3 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। और जब भी हम अगर डायग्राम बनाएं इसका, तो इसका डायग्राम हमेशा वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आई एम टेलिंग यू द डायग्राम। ना देखिए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेविंग। तो हमने क्या करा, यहाँ से ओ से स्टार्ट करा, यहाँ 100 लिया, यहाँ पे 200 लिया, यहाँ पे 300 लिया और 400 लिया। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। यहाँ पे हमने क्या लिया? 100 लिया, 200 लिया, यहाँ पे 300 लिया, यहाँ पे 400। लेट्स सपोज दैट मैं एम टेलिंग यू हाउ दिस डायग्राम विल बी मेक। यहाँ पे हमने -100 लिया, यहाँ पे -200 लिया। ओके, वी हैव मेड दिस डायग्राम। और व्हेन वी ड्रॉ इट यू विल फाइंड दैट सेविंग फंक्शन इज लाइक दैट। तो सेविंग यहाँ पे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेविंग 0 होता है, यहाँ पे सेविंग 0 होता है। इसके ऊपर सेविंग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके नीचे सेविंग क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेविंग यहाँ पे क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इसके ऊपर सेविंग पॉजिटिव होगा, इसके नीचे सेविंग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सेविंग होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकम होगी। वाई मीन्स इनकम। यू कैन राइट हियर इनकम। ओके, तो इसके ऊपर सेविंग पॉजिटिव मैंने बताया। सेविंग जो होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, 0 होती है और नेगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब देखिएगा आप, अब आपको मैं सेविंग फंक्शन एल्जेब्रिकल फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द सेविंग फंक्शन? तो सेविंग फंक्शन जो होता है वो होता है -C बार प्लस MPSY प्लस MPSY, जहाँ पे C बार बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, इसको बोलेंगे। और उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, और उसको बोलेंगे इनकम। जहाँ पे C बार बोलेंगे मिनिमम
लेवल ऑफ सेविंग, इसको बोलेंगे MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये मैं सब करा चुका हूं आपको, प्रोपेंसिटी टू सेव। और वाई बोलेंगे इनकम। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझ ले, तब आपको और बारीकी से इस क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। तो लेट सपोज डेट सी बार इज इक्वल टू, लेट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सी बार इज इक्वल टू -200 और मैंने इनकम ले ली 1000। जब मैंने इनकम 1000 ले ली और मैंने निकाला MPS मैंने 0.4 ले लिया, MPS क्या लिया 0.4। सो लेट सपोज डेट सेविंग कितनी आएगी, सेविंग इज इक्वल, पुट द वैल्यू हियर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, माइनस सी बार प्लस MPS वाई, व्हाट इज माइनस सी बार, -200। ये सेविंग हमने कितनी ली, सेविंग हमने कंजम्पशन जो है हमने इसको -200 ले लिया, कितना ले लिया -200 लिया। तो ये हमने जब हमने इसको लिया तो कंजम्पशन कितना आ गया, -200 आ गया, -200 प्लस MPS कितना आ गया, MPS कितना है 0.4% है, कितना है MPS 0.4 है, तो 0.4 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा -200 प्लस 400, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। ओके, तो सेविंग हमारी कितनी होगी 200 होगी। तो ये मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया किस तरीके से आपने करना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको कंजम्पशन ये गिवन होगा, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन गिवन होगा, आपने सी बार इजिकल टू प्लस MPS इजिकल टू वाई लिखा है, ठीक है ना। और आपने ये लिख दिया यहाँ पे 200 गिवन होगा, आपने यहाँ पे -200 लिख दिया प्लस 0.4 इंटू 100, आपने इस तरीके से सॉल्व करा, तो यू विल गेट सेविंग इजिकल टू 200, सेविंग इजिकल टू व्हाट 200। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सी की कितनी है -200 प्लस MPS कितना है 0.4 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ पे कितना आ गया 400 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया आपने। इस तरीके से एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो बना सकें और आप लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स, डॉक्टर विभा हुना।